मैं इसको क्यों देख रहा था, मैं वही उसको बोल रहा, ये मुंडी हिला रहा था, मैं बोला कि हाँ, फिर मैं बोला कि अरे ये तो फिर कैमरा में भी नहीं है. This podcast is with the CEO of Ludhiana Angels Network, Shibananda Das. Shiba sir completed his BTech from NIT Rourkela, did his MBA from IIM Kashipur with gold medal. He wrote 2 novels with Sir Ruskin Bond. He is also an angel investor and invests in different startups. And he helped a lot of startups by funding them. So if you are someone who is interested in startups and want to build your own startup, तो देखो यार मन में काफी doubts आते हैं. How to find a co-founder? You don't have to find a co-founder. They will automatically come. अगर आपको गोवा जानी है तो all you do is take a bus to Goa. आपको पैसेंजर्स मिल जाएंगे. How to do risk management? रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए. सपोज मैंने फर्स्ट ईयर में अपनी कोई कंपनी रजिस्टर करी एंड बाय द एंड ऑफ सेकंड ईयर आई शुड बी क्लियर कि अगर मैं अभी तक इससे प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ देन आई शुड फोकस ऑन माय प्लेसमेंट पार्ट. अदरवाइज प्लान बी वाले तो कभी भी प्लान ए के ऊपर इंपॉर्टेंस देंगे ही नहीं. You know, if your tiger is following you, so you would be faster than the tiger. Should we compare our path with others? कंपैरिजन करने से एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी आती है. कभी भी नहीं आती है. जब आप जीत रहे हो तभी आपको सही लगता है. आप जब हार रहे हो then all you do is you feel, you are completely filled with jealousy, and then all you do is not to improve yourself but to ensure that the person suffers. Shiba sir took some really good studies of startups. Wow Momos is a startup whose valuation is more than 450 CR. ओके. ठीक है, मोमोज बेचते हैं. What according to you is the biggest mistake of your life? Choosing engineering, because in my 4 years of engineering, if one thing that I didn't understand was engineering. और भी काफी सारी चीजें डिस्कस की गई हैं इस पॉडकास्ट के अंदर. सो वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग रियली गुड. एंड बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ताकि हम और अमेजिंग गेस्ट को अपने कंडा स्पीक्स पॉडकास्ट पे बुलाते रहें. नाउ लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट. सर यू वेयर मैनी हैट्स एज अ प्रोग्राम डायरेक्टर, सीईओ, राइटर. आपको कौन सा रूल बेस्ट सूट करता है और आप सबसे एंजॉय कौन सा रूल करते हो? Writing. ओके. Writing, especially when I'm alone. The second best thing that I do is parenting. As the father of my daughter, I would love to, actually I experiment a lot. क्या करना चाहिए psyche के ऊपर, so that she comes out of it. She is not like traditionally, she doesn't follow a particular herd. She retains her identity, and that's the most important thing, that you retain your identity. Everybody knows you by your name. That is the most important thing in life. ग्रेट. और जैसे भी आपने रिटेन योर आइडेंटिटी वाली बात करी है, हाउ कैन समवन रिटेन हिज और हर आइडेंटिटी? Follow what you love. ओके. जो आपको पसंद है वही आप करोगे. सी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब द मोमेंट यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ कि यार ये वो कर रहा है, उसको वो जॉब लग गया, तो फिर यू स्टार्ट फॉलोइंग अ पाथ. देयर इज अ ब्यूटिफुल सेइंग दैट व्हेन यू सी अ बुद्धा, किल द बुद्धा. दैट मीन्स don't follow anyone. If there is, you find a Gautam Buddha, don't follow his lifestyle. Follow your lifestyle. You take a leaf out of his life, but retain your identity. क्योंकि जो रास्ता तुम्हारे घर में जाता है ना, that's the only road that goes. It doesn't go to any other house. So you have to follow your own path. ओके. ग्रेट. बट डोंट यू थिंक कंपैरिजन करने से एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी आती है? नहीं आती है. नहीं आती है. कभी भी नहीं आती है. जब आप जीत रहे हो तभी आपको सही लगता है. आप जब हार रहे हो then all you do is you feel, you are completely filled with jealousy. True. And then all you do is not to improve yourself but to ensure that the person suffers. The other person suffers. True. कंपैरिजन से काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी भी आती है ना एक दूसरे के लिए. व्हाट डू यू थिंक? उससे फिर ना आप जो एक्चुअली जो करना चाहते हो वो नहीं मिलेगा आपको. ओके. आपने इतने सारे स्टार्टअप्स, आपने इतने सारे एंटरप्रेन्योरशिप देखी है, तो उसमें आप क्या कर रहे हो वो सामने वाले को बताना, सबसे शेयर करना, व्हाट आई डू इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? देखिए, आइडिया शेयर करना, जनरली पीपल फील लाइक कि आइडिया अगर मैं बता दिया तो फिर somebody would copy it. That's the only fear you have. लेकिन the most important part in a startup is the execution part. एग्जीक्यूशन पार्ट. आपको सबको पता है रिलायंस क्या कर रही है, तो आप रिलायंस जैसा बन जाओगे? नहीं बन पाओगे. Because the kind of networking they have, the kind of supply chain they have, created, the kind of people they are connected with, वो चीज़ों के लिए you have to step out of your house and do it. It's not like I'll steal the idea. You cannot steal it. हाँ, अगर वही चीज़ अगर कॉम्पिटेटिव, मतलब जैसे कि रिलायंस अभी कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, then somebody else who is already in the same field and has that kind of power, if they know it, then obviously they will be able to copy it.
बट फॉर अ स्टार्टअप बोथ ऑफ यू आर फ्रेशर्स, ना उसके पास कुछ है ना तुम्हारे पास कुछ है, तो कॉपी करना बहुत डिफिकल्ट है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मुझे नहीं लग रहा है. एंड यू शुड ऑलवेज वैलिडेट योर आइडिया. अगर आपके पास इफ यू हैव अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया which obviously will, you keep on bettering it, so you share it with others, they will add their new features, they would add their, there would be a critic to it, and then what comes out of this particular discussion is a refined one. Okay. तो खराब नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज़ है. हाँ, बट किसके साथ कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है. इफ somebody is serious then he puts everything into it, वरना फिर आप वैसे ही मतलब पटाने के लिए आप पब्लिक में बोल रहे हो तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. सर अगर मुझे स्टार्टअप करना है आज के टाइम पे, तो व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू डू स्टार्टअप? अभी अब एक्चुअली 2 दिन पहले था. शुड हैव स्टार्टेड 2 days बिफोर. द रीजन इज स्टार्टअप ऐसा एक एंटरप्राइज नहीं है. दिस इज अबाउट यू, वेर यू गेट एवरीथिंग एट वन प्लेस, वेर यू हैव फ्रीडम, you have money, you have your identity, and everything put together, and that is served on a platter. But all you have to do is you have to create that platter. So it's the path is extremely difficult, but there is there's never a better thing to do other than entrepreneurship. And you should start it ASAP. Warren Buffett started at the age of 7, and he regrets that he started late. How to find a co-founder? You don't have to find a co-founder. They will automatically come. अगर आपको गोवा जानी है तो all you do is take a bus to Goa. आपको पैसेंजर्स मिल जाएंगे. मैं आपको अपना बताता हूँ. आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई एजेंसी. मैं काफ़ी बार स्टार्ट करता हूँ एंड आई फेल. मैं पिछले 3 बार स्टार्ट कर चुका हूँ कि मैं एजेंसी ओनर हूँ. व्हेन क्लाइंट्स कम, और फिर उसके बाद मैं उसको मैनेज नहीं कर पाता हूँ एंड मैं उसको आउटसोर्स करता हूँ. काफ़ी बार काम अच्छा होता है, काफ़ी नहीं अच्छा हो पाता है. तो मैनेजमेंट के लिए मुझे आई यूज्ड टू थिंक कि कोई मेरे साथ हो ना, जो मेरी हेल्प कर दे, कोई वीडियो एडिटर या कोई ऐसा मेरे साथ एज अ को फाउंडर, बट मुझे मिलता नहीं है वो. तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ वो चीज़? तो वंस यू स्टार्ट अलोन, आप कहीं ना कहीं प्रमोट करोगे, क्वालिटी वोंट बी दैट गुड, बट आपने बेबी स्टेप्स ले लिए. somebody would see it and then he would find कि अरे यार मुझे जो चीज़ें चाहिए ये बंदा दे रहा है. So he or she would approach you directly. It's very difficult to find by logics कि भाई इसका ये है तो हम इसको ले लेंगे. No, it has to be a natural connection. The synchronization should be very natural. वो कब होता है? जब आप गोवा के बस में हो तो फिर बाकी सारे लोग गोवा जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिट मिल जाएगा एक बंदा. बट अगर आपको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है एंड देन यू आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि कौन मिलेगा एंड देन आई विल गो टू अ डेस्टिनेशन, वो नहीं होती है. इट्स डिफिकल्ट. It's better to actually go, you take baby steps, naturally you will come across people, those who are interested in your kind of work. और कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे. I have never seen someone who has gone ahead and found a co-founder. तो एज अ कॉलेज स्टूडेंट मुझे स्टार्टअप करना चाहिए या मुझे जॉब ढूंढनी चाहिए पहले, एक स्टेबल इनकम? जैसे लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई भी स्टार्टअप ही करना चाहता है ना, मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ भाई करना क्या है. पहले मैं DSA करूँगा, जॉब लूँगा, एक डिसेंट इनकम कमाऊँगा, वो पैसा कमाने के बाद जब मैं सिक्योर हो जाऊँगा फिर मैं स्टार्टअप करूँगा. क्योंकि स्टार्टअप करने के लिए तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये सबको लगता है. क्या ये ऐसा है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है. और एंटरप्रेन्योरशिप का एक सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है, की प्रिंसिपल है कि एनीवन कैन बी एन एंटरप्रेन्योर. एनीवन कैन बी एन एंटरप्रेन्योर. एंड व्हाई? बिकॉज यू डोंट नीड दैट काइंड ऑफ फंडिंग. अगर आपको बिजनेस पे जानी है तो यू ऑल स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट from a kiosk also. Given an example, I'll give you a better example. Wow Momos. Wow Momos is a startup whose valuation is more than 450 CR. Okay. ठीक है. मोमोज बेचते हैं. मोमोज तो आपके ठेला वाला भी बेचता है. बट देन दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच. उन्होंने एक लोगो बनाया, कंपनी नाम मतलब दे रजिस्टर्ड अ कंपनी, दे फॉर्म्ड अ कंपनी. अपना एक बिजनेस प्लान था, तरीके से किया. नो इनोवेशन. अब ऐसा तो नहीं कि उसमें AI यूज है कि खाने के बाद आपके AI ऑटोमेटिकली पता चल जाए, ऐसा नहीं है. कुछ भी नहीं है, प्लेन ब्लैंड मोमोज. लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है. आज एक कियोस्क बनाया, कल 2 बनाऊंगा, परसों तीसरा बनाऊंगा, देन आई विल फॉलो इट अप. लेकिन अगर पता है कि नहीं कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट टेक अप जॉब, दैट्स द ओनली वे यू कैन एक्चुअली टेक अप एंटरप्रेन्योरशिप. एंड अगेन, इवन इफ यू आर टेकिंग अप जॉब्स, दैट डजंट मीन कि वो गलत है.
बट देन यू शुड बी नोइंग दैट कि मैं जॉब इसीलिए कर रहा हूँ ताकि ना आई विल गेट दैट कैपिटल एंड देन आई विल इन्वेस्ट इन माई स्टार्टअप. अगर आप इफ यू आर लेकिन यू आर टेकिंग प्राइड इन बीइंग अ जॉब सीकर, देन देयर इज एन इश्यू. क्योंकि फिर जब आप मरोगे तो फिर आपका जो एम्प्लॉय आईडी वही आएगा कि दिस एम्प्लॉय आईडी इज नो मोर देयर. आपका नाम कभी नहीं आएगा. और उस टाइम पे भी कंपनी का नाम आएगा कि सपोज यू आर वर्किंग फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, दिस एम्प्लॉय फ्रॉम दिस कंपनी, अगेन यू आर प्रमोटिंग द कंपनी ऑल्सो, आफ्टर योर डेथ ऑल्सो यू आर प्रमोटिंग द कंपनी, नॉट प्रमोटिंग योर सेल्फ. यू हैड अ वंडरफुल लाइफ टू सेलिब्रेट एंड यू डिडंट डू इट. ओके, बट एज अ कॉलेज स्टूडेंट अगर मैं स्टार्टअप करता हूँ एंड आई फेल, और फेल तो पक्का होगा. बट ऑब्वियस द रीजन इज आप एंटरप्रेन्योरशिप आपको पता नहीं है. जैसे कि आप साइकिलिंग अगर करोगे, बोलोगे ऐसा कोई बंदा है जो कि साइकिलिंग किया और गिरा नहीं एक बार में, वे बहुत कम मिलेंगे. तो यू विल कम अक्रॉस पीपल दोज हु लाइक दोज हु वुड फेल, एंड यू शुड ऑलवेज प्रे दैट यू शुड फेल. क्योंकि पहले 5-6 बार अगर गिर गए ना, by the time you graduate you know the tricks, the tips and tricks of entrepreneurship, and then you can always expand. तो वो सबसे बेस्ट टाइम है 11th-12th स्टैंडर्ड से आप अगर स्टार्ट करोगे. सो द कंपनी रजिस्ट्रेशन हैपन्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर बैचलर्स डिग्री, बी इट बीटेक और जो भी है, एंड देन नेक्स्ट 3 years you keep on trying. So you fail a couple of times, and by the time you are graduating, you are pretty clear कि भाई यही तो करनी है बस. बट उसके अंदर भी एक रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए. सपोज मैंने फर्स्ट ईयर में अपनी कोई कंपनी रजिस्टर करी, एंड बाय द एंड ऑफ सेकंड ईयर आई शुड बी क्लियर कि अगर मैं अभी तक इससे प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, देन आई शुड फोकस ऑन माई प्लेसमेंट पार्ट. अदरवाइज ना प्लान बी वाले तो कभी भी प्लान ए के ऊपर इंपॉर्टेंस देंगे ही नहीं. ओके, ग्रेट. प्लान अगर आपका पहले से ही प्लान बी है, तो ए तो आपका तो आपको तो आप ऑफ ऑल द पीपल यू आर द ओनली वन हु इज वेरी क्लियर कि प्लान ए चलने वाला नहीं है. चलने वाला नहीं है, एग्जैक्टली. तो ऐसा कौन सा मतलब ये तो नहीं हो सकता. ये कभी भी प्लान ए चलना ही चाहिए कुछ भी करके. कुछ भी करके नहीं. यू विल ऑलवेज पिवट. देयर आर सो मेनी वेज. इट्स योर लाइफ, यू हैव ओनली वन लाइफ. ऐसा कुछ है कि प्लान बी है तो प्लान बी तो नहीं है. एंड हाउ यू लिव योर लाइफ, कहीं ना कहीं उसी हिसाब से तो जी रहे हो ना. कुछ ना कुछ तो यार यहाँ पर ये गलती हुई, देन you change and somebody rightly said, I think it was Winston Churchill who rightly said success is defined, how he defines success, someone who has that enthusiasm intact from one failure to another failure. Great. So he who retains that enthusiasm after failing many times is the one who is defined as a successful person. Okay. पर्सनली आई रिग्रेट अ लॉट कि जैसे मैंने फर्स्ट सेकेंड ईयर में अपनी CGPA पे फोकस नहीं करा. आई वॉज इनटू कि मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे कुछ करना है, कुछ बनाना है खुद का. तो मैंने CGPA पे ध्यान नहीं दिया, भव्या ने भी ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी. हम अपना ऐसे ही कुछ कर रहे थे. बैक्स भी आई काफ़ी ज़्यादा, तो बैक क्लियर हो जाती थी. बट फिर अभी क्या है, अभी सारे जो साथ वाले पीयर है ना, ये कर रहे हैं प्रिपेयर उनके लिए DSA करके, प्लेसमेंट, माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप्स के लिए कर रहे हैं. एंड अभी प्रेशर फील हो रहा है कि CGPA भी कम है, DSA भी नहीं करा है, और जो भी कर रहे हैं उसको 100% उससे कुछ खास इनकम आ नहीं रही है. तो ऐसी चीज़ को कैसे मतलब वो कॉन्फिडेंस रिटेन रखें, जैसे भी आपने बोला कि एक फेलियर से अगले फेलियर पे जाने के लिए और इंटैक्ट रहना चाहिए वो कॉन्फिडेंस, बट वो आता नहीं है. हाउ टू लाइक उसको करें कैसे, रिटेन कैसे करके रखें? सबसे बेस्ट पोजीशन में आप हो, क्योंकि इफ योर टाइगर इज फॉलोइंग यू, सो यू वुड बी फास्टर देन द टाइगर. ऑलवेज बी फास्टर देन द टाइगर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शंस नहीं है. सो द काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू कैन पुट इन, द काइंड ऑफ focus that you can actually come across, that which you will ensure that it turns into success, nobody can provide that. क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शंस नहीं है. अगर मेरा माइक्रोसॉफ्ट में लग गया एंड देन आई वुड थिंक ऑफ अ स्टार्टअप, आई हार्डली वुड थिंक ऑफ इट. मैं तो फिर वी करके फोटोग्राफ डालूंगा. एग्जैक्टली. तो वो नहीं होगा. सो यू शुड बी वेरी प्राउड दैट कि आपके पास कुछ नहीं है, because someone who doesn't have anything to lose is going to gain only. True. उसके पास तो कुछ है ही नहीं है लूज करने के लिए. बट देन yes, you cannot plan it out based on कि कौन सा फील्ड कितना प्रॉफिटेबल है. You should not be doing that. क्योंकि कहना कि AI में प्रॉफिट है तो फिर ऐसा नहीं है कि you jump into AI. मुझे AI पसंद नहीं है तो फिर नहीं है.
सो ओनली थिंग दैट यू कैन फॉलो इज जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद, मतलब दैट्स योर लव, दैट्स योर फर्स्ट लव, वो रात को 12 बजे भी तुम कर लोगे. सो यू हैव टू फिगर इट आउट कि वो मैडनेस किस पे है. वो पता चल जाता है, मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली विल कम अक्रॉस कि नहीं यार यही है. जैसे आपने प्लान बी के बारे में बोला था कि अगर प्लान बी होगा तो फोकस ए से हट के बी पे ही चले जाएगा. बट व्हाट इफ कोई कॉलेज स्टूडेंट है जिसने स्टार्ट करा एंड ही फेल्ड बट अभी एट लास्ट में पेरेंट्स मिडिल क्लास पेरेंट्स तो एक्सपेक्ट करते हैं कि बाय द एंड ऑफ 4th ईयर ये कुछ एक अच्छी प्लेसमेंट लेगा, जॉब करेगा और घर संभालेगा. बट फिर वहाँ पर तो वो बच्चा कुछ कर नहीं रहा है, फेल हो रहा है एट लास्ट. तो वो कैसे मतलब रिटेन रखे वो चीज़? फिर तो उसके लिए प्लान बी होना चाहिए ना, ऐसे तो है नहीं कि प्लान बी नहीं, प्लान बी होना चाहिए, बट देन अगर वो अपने लिए नहीं हो पाया तो वो किसके लिए भी होगा? वो किसी के लिए भी नहीं होगा. इफ़ ही कुडंट रिटेन हिज लव एंड ही कुडंट फाइट इट आउट, तो वो घर के लिए भी कौन सा फाइट कर लेगा? जो अपने लिए फाइट नहीं कर पा रहा है वो घर के लिए कैसा फाइट कर लेगा? अगर वो नहीं कर पा रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, एंड देन देयर आर कमेंट्स एंड ऑल. मोस्टली ये स्टोरी आपको हर जगह पर मिलेगा फॉर ऑल दोज हु हैव आल्सो स्केल्ड अप. उनके यहाँ पर भी प्रॉब्लम हुआ था तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो पाथ निकाला है. यू सी द मूवी MS धोनी का जो मूवी है, तो वहाँ पर भी वही चीज़ चल रहा है एंड ही इज़ ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि कैसे मैं एक मिडिल पाथ निकालूं. ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज स्टक इन इन अ रेलवे स्टेशन एज अ TT. तो वो नहीं कर पा रहा था. बट देन ऑल्सो यू रिटेन योर लव. आप सुबह जाके 3 घंटा 4 घंटा प्रैक्टिस भी कर रहे हो, यू आर फॉलोइंग योर लव एंड यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो पापा को वो दिलासा भी दे रहे हो कि नो मैटर वॉट आई विल बी बेटर ऑफ एज कम्पेयर टू फॉलोइंग वॉट अदर्स आर डूइंग. और अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा फिनेंशियल इशूज़ हैं, then you can take up a job, not as good as having a job in Microsoft, but then you can always take up a normal job also. So थोड़ा सा पैसे आए, then you keep on channelizing, you channelize those funds into your startup, and again you take your parents along. तो सब कुछ करना पड़ता है और it's a better thing to do, to actually take everybody on same page. ओके, तो क्या आपने कभी अपनी कॉलेज लाइफ में कोई स्टार्टअप ट्राई करा? मेरा आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज इन 2002. I was in first year. I came up with a magazine called Renaissance, and Renaissance is something which is like your story as of now. Whatever you see, we started back in 2002, and the college said we will not fund it. So I went to RSP, Rourkela Steel Plant. We started that, but somehow college said कि नहीं यार we'll fund it. So I was the chief editor of it for 3 years, from first year till final year, end of first year till final year. So I enjoyed my stint. But yes, after that, I didn't pursue it. I went to US for my studies, and then there were so many other issues. And I'm still involved in startups. But personally, I don't own a startup. I have invested in startups. ओके, तो सर जैसे भी आपने बोला यू वेंट टू US, तो आप फाइनेंशियली बैकग्राउंड से कैसे हो? स्टेबल हो या फिर कैसे डिसेंट है या नहीं है? डिसेंट है. अगर स्टोरी बोल के बोलना है तो फिर मतलब आई कैन ऑलवेज मेक अ स्टोरी कि मेरे घर में कुछ नहीं था and फिर वो थोड़ा सा इमोशनल स्टोरी बनाना तो इजी है. बट नो, आई मीन माई फादर वॉज अ प्रोफेसर. सो हम अपर मिडिल क्लास में थे. ऐसा कभी भी नहीं था कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है एंड ऑल दैट. नेवर हैपेंड दैट वे. तो स्टेबल लाइफ था, बहुत अच्छे जगह पर पढ़े. तो डोंट यू थिंक कि आप घर से स्टेबल थे तो उस वजह से आपको एक एक्स्ट्रा पुश मिला, आपको नहीं, करेज आया? एक्स्ट्रा पुश नहीं मिला. करेज आया? करेज नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. मिडिल क्लास फैमिली यार. ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टअप कर लो. पापा प्रोफेसर थे, बिजनेस ओनर नहीं थे कि उनको पता होगा. ही नेवर एनकरेज्ड स्टार्टअप्स एंड ऑल. तो वो तो ऑब्वियसली ही सेड यू हैव टू फाइंड अ जॉब. तो वो चीज़ हमने लाइफ लॉन्ग किया है. ऐसा नहीं है कि हमें पता था कि स्टार्टअप ही करनी. नो, बट देन वो कीड़ा रहता है. माई कीड़ा इज कि कुछ भी हो जाए, आई विल रिटेन माई नेम. आई विल नेवर गिव इट टू समबडी एल्स. दैट आई विल ऑलवेज कीप इट. समवन स्टार्ट्स इन कॉलेज, तो उसको अगर फंडिंग चाहिए अपने कोई आइडिया के लिए या कुछ भी, कोई स्टार्टअप के लिए फंडिंग चाहिए, वो कैसे ले सकता है फंडिंग? फंडिंग के तो मतलब आप क्या बताऊँ, आई मीन द काइंड ऑफ ऑप्शंस यू हैव टुडे अलग लेवल पे. मतलब द इनक्यूबेटर्स, दे हैव फंड्स टू गिव यू, दे हैव ग्रांट्स टू गिव यू,
They have seed money to give you. After that, your private investors are there, angels are there, VCs are there. ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर आपको फंडिंग की इशू है. Only thing that you need to have is a serious entrepreneur, a founder with a good product, not innovative product, good product. वाओ मोमोस का मैं एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि इट हैज़ नथिंग टू डू विथ इनोवेशन. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रॉकेट छोड़ दिया आपने, 3 रॉकेट छोड़ दिए उसके ऊपर, ऐसा नहीं है. But then if you have a good product, with clarity, if you know what exactly would be your next step, then I think others will follow suit. कि अगर कोई, जैसे मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, मेरे पास कोई आइडिया है, मैं आपसे फंडिंग लेता हूँ स्टार्टअप के लिए और उसके बाद मैं गायब हो जाता हूँ, तो क्या आपके पैसों का क्या? ग्रांट अगर है, अगर कि मतलब जैसे कि आपने NIT से ग्रांट लिया है तो कुछ इश्यूज नहीं है. बट अगर जैसे कि आपने कहा कि मेरे से लेके आप चले गए, फिर तो मेरे पास तो तरीके होंगे ना. तरीके होंगे. फिर ग्रांट्स अगर आप लेते हो तो फिर दैट इज जनरली यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. तो उसमें फिर आप पैसे वापस नहीं कर सकते हो. उनको भी पता है, दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रांट. तो आपको वापस नहीं करनी है, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑल्सो. बट सीड मनी में आपको कहीं ना कहीं अगर वो मतलब देन दे गिव यू एज अ CCD और बहुत सारे ऑप्शंस हैं. इंस्ट्रूमेंट्स आर दे कम विथ डिफरेंट नेम्स. बट जनरली होता है कि डेट लोगे या इक्विटी पे लोगे, ये दोनों मेन है. या तो आप डेट ले रहे हो तो फिर आप यू हैव टू रिटर्न इट. इक्विटी है तो फिर वो द वन हु इज गिविंग यू मनी, ही ओन्स अ पार्ट ऑफ योर कंपनी नाउ. तो वो उसका जो अगर सपोज उन्होंने 25 लाख दिए या 50 लाख दिए, सो दे ओन अ पार्ट ऑफ योर कंपनी. तो उनके 5 साल के बाद आप अगर 10 करोड़ के बन गए तो फिर देयर मनी ऑल्सो गेट मल्टीप्लाई. सर एज अ VC आप क्या देख के किसी को इन्वेस्टमेंट देते हो? वी आर इनटू एंजल्स, वी आर नॉट इनटू VC. फिर से क्या देख के आप कुछ इन्वेस्टमेंट? The only thing that we look at, and most of the people generally look at, is the founder. फाउंडर में अगर वो दम है तो वो सब कुछ कर सकता है. फाउंडर में वो अगर दम नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता. हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रोडक्ट, हैज़ नथिंग टू डू विद एनीथिंग अदर देन दैट. बाकी चीज़ें ऐसा नहीं है कि भाई प्रोडक्ट ही नहीं है, फाउंडर दमदार है लेकिन प्रोडक्ट ही नहीं है. वो फ़र्क ऑब्वियसली देयर वुड बी देयर वुड बी अ डिफरेंस. बट आई एम सेइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द ड्राइविंग फोर्स फॉर सिलेक्टिंग अ स्टार्टअप, the parameter that is more important is the founder and the attitude he brings in. ओके, तो आपने पहले एंजल बोला था. एंजल एग्जैक्टली क्या होता है? See, VC is an institution. Angels are generally like those HNIs or those who have money and they can invest directly in a startup. They're individuals who are investing, whereas a VC is an institution. So they have a corpus and they fund the startup. Okay, so which is best place to go for It's funding? not best place. Class 7th अच्छा है या 10th अच्छा है? अरे यार दोनों चाहिए. 7th करोगे तभी 10th पे जाओगे ना. तो एंजल्स जनरली कम बिफोर VC. VCs फंड यू, फिर उसमें फिर आपके सीरीज फंडिंग आ जाती है. एंड देन आफ्टर दैट सीरीज फंडिंग के बाद ऑल यू गो फॉर यू जनरल गो फॉर इज IPO. फिर आप पब्लिक कंपनी बन जाते हो एंड यू आर नो मोर अ प्राइवेट कंपनी, यू आर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. तो आपको क्या लगता है कि आपकी NIT के टैग ने आपको एक्स्ट्रा पुश दिया है? मैंने कभी यूज ही नहीं किया. आई हैव नेवर यूज्ड इट बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, व्हिच इज NIT. ओके, तो NIT स्टैंड्स फॉर इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी इज IIT. और जैसे अब IIM में गोल्ड मेडलिस्ट हो, तो क्या क्या चीज़ें आपने सीखी IIM से? देखो, इफ समबडी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम एन IIT, he understands technology. But if someone who is a gold medalist from an IIM, so he understands psychology. He understands psychology. क्योंकि कहीं ना कहीं you cannot get a gold medal by just studying in IIM. वहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं टीचर्स के साइकोलॉजी के पर बेस्ड you have to play the game. There are people those who don't want you to get any extra mark. तो कहीं ना बहुत सारे पॉलिटिक्स चलते हैं क्लासेस में. दे यूज लाइक एनीथिंग एंड देन यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ इट. तो आपको सारे पॉलिटिक्स भी आने चाहिए एंड सारे साइकोलॉजी भी, आपको कहीं ना कहीं सारे साइकोलॉजी की जो टिप्स एंड ट्रिक्स वो भी आने चाहिए. किसको क्या पसंद है, किस तरीके से आप वो पाथ चूज कर सकते हो. हाउ टू राइट द आंसर सो दैट द टीचर्स वुड बी इम्प्रेस्ड. व्हाट इज हिज इंटरेस्ट, व्हाट इज and it goes to n number of stages.
कितने मतलब जितना इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली यूज दैट डेटा टू गेट मार्क्स. So it's not just about studying. I mean, you have to study, and top of that, you have to do all these things also. What, according to you, is the biggest mistake of your life? Biggest mistake, choosing engineering, because in my 4 years of engineering, if one thing that I didn't understand was engineering. क्योंकि the simple fact is engineering is a very practical subject and taught in classrooms by teachers, those who never stepped out of classrooms. Engineering is a subject which should be taught by people, those who are on field. There is never a better degree than engineering, because you talk about any kind of degrees, they have something they would need which is based out of engineering. For an example, doctors, all the machines that you will find in hospitals made by engineers. This is a very good degree, but the way we were taught, it was so pathetic. NP, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों कर रहे थे. Because इलेक्ट्रॉनिक्स again ट्रांजिस्टर्स दो यार, ट्रांजिस्टर्स दो, सिखाओ, बनाओ, रेडियो बनाओ. The first year should you should make it compulsory कि रेडियो बनाओ. कुछ बनाओगे तब ना it becomes pretty easy to actually see कि यार ये हो कैसे रहा है, rather than कि भाई आप पढ़ लो, रट लो. I mean, these are all practical subjects. डोंट यू थिंक हमें हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जब हम स्कूल से कॉलेज जाते हैं, तो वही हमें एक तरह काइंड ऑफ बांध के रखता है कि हम स्टार्टअप्स नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्सप्लोर कम कर रहे हैं, बस पढ़ाई कर रहे हैं. नहीं, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो ना. पढ़ाई भी अगर करते तो फिर तो भी फायदा होता ना. पढ़ाई नहीं कर रहे हो, रट रहे हो. हाँ. द ओनली थिंग दैट इज सो बैड अबाउट एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया इज the school teachers, those who teach us, they chose this particular profession as the last option. उनको और कुछ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने वो चूज किया. So they have at least they have least interest in actually teaching you the applications of a particular subject. जैसे कि I remember when I was taught trigonometry, the teacher who was teaching me, मतलब हमें बोल दे कि रट लो, साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1. अब कैसे हुआ मुझे कभी भी नहीं पता था, तो हमने रट लिया. एंड सिंस आई वाज फ्रॉम ICIC, उसमें हमारा था कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तो प्रूव करनी है. तो आई ऑलवेज फेल्ट कि फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज वैलिड. मुझे पता नहीं था कि फॉर ऑल थीटा. एक नया टीचर फिर मिला जो कि ही एक्सप्लेन्ड मी कि हाउ टू मेजर द हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बाय मेजरिंग द शेड, द लेंथ ऑफ द शेड, एंड देन यू टेक द रेशियो एंड इट कम्स अक्रॉस लाइक tan थीटा, और फिर उससे पता चलता है. दैट वाज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. इतना इंटरेस्टिंग लगा, फिर मतलब बंदा पागल हो जाता है फिर. बिकॉज व्हेन यू सी द एप्लीकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, नोबडी कैन एक्चुअली बीट यू इन दैट पर्टिकुलर गेम नाउ, क्योंकि आपको पता है कि ये क्यों यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है. बोइंग का भी इशू हुआ, अभी हाल ही में इशू हुआ ना बोइंग में. बोइंग 707 करके एक होता है, इट्स अ सीरीज ऑफ बोइंग फ्लाइट्स. 707 क्यों है? क्योंकि इट्स 1/√2. 1/√2 equal to 0.707. And why it is 1/√2? Because the wings make 90 degree. And the flight divides the wings equally. So each angle is 45 degree. ग्रेट. तो वो कहना कि हर जगह पर ये यूज होती है, बहुत जगह पर 1/√2. So it's 707. So the series is 707. तो आपको अगर ये पता है कितना मजा, यू विल एंजॉय इट बिकॉज यू आर यूजिंग समथिंग. अगर आपको मतलब आप अगर गाड़ी लेके जा रहे हो एंड समहाउ यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट कि कितने टाइम पे तुम पहुंच रहे हो, आपको स्पीड और डिस्टेंस पढ़ाना नहीं है, वो बच्चा खुद ही कर लेगा. बिकॉज नाउ ही कैन सी यार घर में पहुंचने के लिए इतना टाइम लगेगा, ही इज कैलकुलेटिंग इट. The practical aspect is grossly missing, and that's one of the reasons why the students are failing like anything, because they do not know where to use this. What according to you is the reason कि जो इंडिया के टॉप यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, उसके जो मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स को फाउंडर्स है वो IITians हैं, IIM से पास आउट है. If you look at the engineering colleges, IIT में जो syllabus है,
NIT में भी वही है, और सबसे जो एक्सट्रीमली लो रैंक्ड जो इंजीनियरिंग कॉलेज होगा उसमें भी वही सेम सिलेबस है, सिलेबस इज द सेम वन, तो उसमें कोई अंतर नहीं है. जो डिफरेंस इज इन द पीयर सर्कल. अब अगर IIT में आप जाओगे तो वहाँ की जो डिस्कशन होती है ना वो लेवल ही अलग है. इवन इफ दे आर डिस्कसिंग समथिंग व्हिच इज लाइक मतलब नॉर्मल टॉपिक्स में भी वो अलग लेवल पे डिस्कशन होती है. When I'll give you one example. I was studying in NIT राउरकेला. तो फर्स्ट ईयर में एक बंदा गया था लूसेंट टेक्नोलॉजीज में US. अब वो बोल रहा है कि लूसेंट टेक्नोलॉजीज में US गया था और बेल लैब्स में गया. बेल लैब्स में, आपको बेल लैब्स पता है, जो AT&T का जो बेल लैब्स था, दैट गेव यू एवरीथिंग, ट्रांजिस्टर्स, C++, लैंग्वेज, एवरीथिंग इट गेव यू. अब वो वहाँ पर जाता है तो हमारे यहाँ पर डिस्कशन क्या होता है, यार बेल लैब्स में वो गया तो वी आर स्टडिंग बेल लैब्स नाउ, कि होता क्या है वहाँ पर, क्या हो रहा है, वो किस तरीके से गया, क्यों गया. अब हमारे यहाँ पर डिस्कशन किस तरीके से हो रहा है. नाउ समवन हु इज़ फ्रॉम अ लो रैंक्ड इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारी और इसमें अंतर तो टॉपिक में ही नहीं है. द काइंड ऑफ थॉट्स वी हैव, दैट इज द डिफरेंस. टॉपिक ही डिफरेंट है पूरा. टॉपिक ही डिफरेंट है ना. वी आर नॉट नो मोर टॉकिंग अबाउट ट्रांजिस्टर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजिस्टर्स आर मेड इन बेल लैब्स एंड हाउ दे मेड इट, व्हाई दे मेड इट, व्हाट वाज द रीजन दे मेड इट. और हमारे यहाँ पर एक बंदा जाता है तो कहीं ना कहीं इमोशनल टच हो जाती है, अरे नेक्स्ट स्टॉप इज US. तो हमारे यहाँ पर सारे बच्चे US गए, इंक्लूडिंग मी. क्यों? क्योंकि कहने की लगता है कि यार मेरा दोस्त अगर जा सकता तो मैं भी जा सकता हूँ ना. दैट कॉन्फिडेंस कम्स बिकॉज क्योंकि पता है कि यार ये बगल वाला तो गया है. वहां पर बंदा कभी स्टेट से बाहर नहीं गया, तो यूनाइटेड स्टेट्स तो बहुत दूर की बात है. लाइक सारा डिफरेंस पीयर में आ जाता है. पीयर में और डिस्कशन और द काइंड ऑफ लैब्स भी है, सब कुछ मिल जाता ना फिर. अब आप IIT दिल्ली में जाओ, IIT दिल्ली में जो लैब्स हैं वो वुड बी स्पॉन्सर्ड बाय लाइक ईदर माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को और सम अ बिग कंपनी. वहाँ का जो टेक्नोलॉजी है वो जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे नेटवर्किंग, जिस तरीके से आपको एप्लीकेशंस एक्सप्लेन करेंगे बेस्ड ऑन देयर डिवाइसेस, तो वहाँ पर तो नहीं है ना. नीचे तो फिर वही हो जाएगा कि आप ये चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, बट नाउ यू आर प्लेइंग विथ दोज डिवाइसेस, तो बहुत अंतर है. आपके साथ कभी ऐसा हुआ जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो कि भाई 35 लाख की तो इन्वेस्टमेंट थी, 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? ऐसे सी इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम. वो बंदा जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर रहा है, एंड इफ ही कम्स विथ अ फिक्स्ड माइंडसेट कि भाई 2 साल में इतना पैसा बन जाएगा, 3 साल में, वो नहीं कर पाएगा. ये जो बंदा है, स्टार्टअप वाला जो बंदा है, ही इज़ क्रिएटिव, ही इज़ क्रिएटिंग समथिंग. नो, ही इज़ क्रिएटिव. ऐसा नहीं कि आर्टिस्ट है, ही इज़ क्रिएटिव. सो ही विल टेक हिज टाइम एंड ही हैज़ अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग. वो आपका फ़ोन नहीं उठाएगा. उसको अगर आप बोलोगे कि भाई लाइन यहीं से शुरू होती है, वो फिर जाके दूसरे लाइन पे खड़ा रहेगा, तो वो नहीं करेगा. बिकॉज दैट्स द ओनली रीजन ही इज एन एंटरप्रेन्योर. ही डिडंट गो फॉर जॉब्स बिकॉज ही वांट्स टू बी अ मास्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी. तो वो आपका तो फॉलो करेगा ही नहीं. सो यू विल बी डिफरेंट. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. मैंने एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था, वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता है, कभी नहीं उठाता. 4 दिन 6 दिन के बाद कॉल बैक करेगा, बट आई एक्सेप्ट हिम. मुझे पता है कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ बिजी था, उसके पास अपडेट नहीं था देने के लिए, तो उसने नहीं उठाया. मुझे लगे यार कौन एक्सप्लेन करेगा उनको. तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट. मैं कल अगर बंदा लेके चला जाऊँ, विच इज़ ईजी फॉर मी, बहुत ईजी. पैसे एक्सट्रैक्ट करना बहुत ईजी है, बट देन आई डिस्ट्रॉय द स्टार्टअप, I destroy the amount of time I have already invested in, and I destroy the entrepreneur also. अब वो फिर कभी इन्वेस्टमेंट लेने से पहले 5 बार सोचेगा. वहाँ पर फिर बहादुरी नहीं दिखानी. You have to invest, you have to go along with it. हम तो डिस्कशन बहुत पर्सनल लेवल पे भी डिस्कशन पे जाते हैं कि भाई क्या चल रहा है, किस तरीके से somebody is having issues. पर्सनल लाइफ में भी he will explain. हम रात को 2 बजे चाय पीने के लिए गए हैं साथ में, और वो भी रेलवे स्टेशन की, वहीं पे ही चाय मिलती. सो यू हैव टू फाइंड अ वे आउट. यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द स्टार्टअप जर्नी, एंड यू हैव टू टेक इट दैट ही इज़ अ फैमिली मेंबर. अदरवाइज डोंट इन्वेस्ट. अगर आपके पास गुंडे हैं तो फिर वो लेवल पे फिर इन्वेस्ट करो जहाँ पर फिर ना वो सिस्टम बैठा हुआ है, वेरी स्ट्रक्चर्ड स्टार्टअप.
तो वहाँ पर आप जाओ. अर्ली स्टेज पे बिल्कुल मत जाना. एंड आई इन्वेस्ट इन अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स वेर आई एम पर्सनल इन्वॉल्व. हाँ, मैं पर्सनल लेवल पे इन्वॉल्व हूँ. मुझे पता है कि कहाँ से कितना चोरी किया, कहाँ पर उसने घपला किया, पता है. वो बोलते भी हैं और मुझे भी पता है कि अरे यार वो बोलेगा भी, क्योंकि ना कि ये सर नहीं हुआ. तो फिर जब वो बताते हैं कि इतना तो चोरी तो करा है, फिर यू हैव टू फाइंड इट आउट कि नहीं यार, यू हैव टू मेंटेन दैट एथिकल वैल्यूज आल्सो, नो, कि वरना फिर मतलब ऐसा तो नहीं है कि 2 लाख प्रॉफिट हुआ, आप बोल रहे हो कि 50 लाख हुआ. ऐसा भी नहीं करना है. तो यू हैव टू आल्सो ब्रिंग देम टू दैट लेवल वेयर दे एक्सेप्ट कि 2 लाख बोलना है, बट नाउ हाउ वी से इट सो दैट आई गेट अनदर इन्वेस्टर. डोंट हैव टू जज हिम और हर, यू हैव टू जज द सिचुएशन कि भाई वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि कहना कि उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो झूठ बोलेगा ही बोलेगा. तो झूठ बोलने के लिए यू डोंट पनिश द गाय, यू हैव टू पनिश द गाय इन द सेंस कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी है. मे बी यू हैव टू शिफ्ट द स्टोरी टू दैट एंगल. तो वहाँ से फिर इन्वेस्टर मिल जाएगा. तो प्रॉफिट के ऊपर मत बोलना, फिर पोटेंशियल के ऊपर बोल. तो आपको भी वो गेम खेलना है, बट यू हैव टू ब्रिंग देम टू द लेवल वेयर दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये गलत है. आपको ये फिर खड़े होकर नहीं बोलना है कि भाई आपने झूठ बोल दिया, अब तो कंपनी बंद करके रखेंगे. ये नहीं है. मतलब इजी है टू स्टॉप. डिस्ट्रॉय, इट्स प्रीटी इजी चॉइस. कितना टाइम लगता है? पत्थर फेंक दो. इजी है ना. फिर डिस्ट्रॉय करना बहुत इजी. you know even if you do something destructive, the monkeys would learn it in 2 days time, even in 2 hours time. But if you allow a monkey to learn how to do stitching, operation, medical operation, he may take 7 years to understand it, because to be creative it takes time. Destruction तुरंत. जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर जो एक कॉलेज रिलेशनशिप्स होते हैं, व्हाट डू यू थिंक वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, डिस्ट्रक्टिव? Relationship in the sense boys girls, या बॉय गर्ल्स, बॉय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए. मतलब ये नहीं, आपकी थी? मेरी बहुत झूठ बोल के हमने नहीं, सच बोलो. see I was always, and I'm a below average guy as far as looks are concerned. तो मुझे कभी ऐसा नहीं है कि कोई तुरंत मिल गया. तो we actually used to strive hard, क्योंकि कहना के लगता था कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, everybody is having it. तो हाँ, but then having a girlfriend, it helps you a lot. But ऐसा नहीं है कि it's extremely important to have a girlfriend and you put it as a syllabus, a topic in syllabus कि भाई यार गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो फिर तो ग्रेजुएशन की डिग्री ही नहीं मिलेगी. ऐसा नहीं है. It comes again as you move, somebody comes in, and joins you in the journey. So when I started Renaissance, so somebody joined and helped me like anything. तो वो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया. And I was like, since my education during my school career was so pathetic, मैं पब्लिक में बोलना तो मैं that was like next to death or sometimes before death also. इतना डर लगता था. So I would always write. I was the chief editor, so I would be a writer. So I was a writer, from my school days, but never a public speaker. Forget about public speaking. I was never a speaker also. Okay. तो उसके सामने बोलने से भी पहले मैं रिहर्सल करके जाता था. Because she's a lady, she was so good at in communication. तो कहना कि मुझे लगता था कि भाई तो रटना पड़ेगा कुछ चीजें. तो and then since she was extremely good at one particular aspect, so we both could actually run the show for 3 years. So that's how you do it. But then the way today, they have a girlfriend because for the sake of it, I think it is wrong. कोई चीज़ आपको पसंद है and you find a co-founder or a co-passenger, that is a better way of living a life, isn't it? मतलब मुझे करना था Renaissance, so I formed a team. One of the team members, she put extra efforts to ensure that the team is successful. तो अच्छा, बहुत ही अच्छी चीज़ वो. तो क्या अभी वो आपके साथ है? I'm married to somebody else means you have the answer. Okay, तो फिर डोंट यू थिंक कि अगर हम कॉलेज में रिलेशनशिप कर रहे हैं और एट लास्ट वो एंड हो रहा है, काइंड ऑफ इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, हमारा मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है एंड टाइम वेस्ट किया जो हमने करा,
क्यों? टाइम वेस्ट? क्या मतलब आप सिलेबस लेके जाओगे भाई, अरे यार ये तो नहीं हो रहा सही है. सी फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग इमोशंस इज अ ह्यूज थिंग, और वो कहीं ना कहीं आप लोग समझते नहीं हो. हम्म. So someone who loves you or is a part of your journey are extremely lucky to be someone that for whom somebody else is devoting time, energy and efforts. उससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती है. You can score 9 on 10, 10 on 10, but you cannot have someone who is emotionally connected because you want. No, it has to be an emotional connections naturally. So you're lucky enough. So you should be like thankful that destiny gave you that chance. And again, when you are traveling to a place, suppose आप गोवा जा रहे हो, आपको एक somebody from the opposite gender is your co-passenger. अब गोवा में उतरोगे तो फिर बोलोगे शादी कर, ऐसा तो नहीं होता ना. तो you have to value that journey. 2 साल मेरे साथ वो रहे या 3 साल रहे, value the journey. The kind of things that she taught me. And she was the one who actually handled me to say कि पब्लिक में बोलना कैसे. तो ये पार्ट मैं लाइफ में अगर वो नहीं आते तो शायद मैं कभी सीखता भी नहीं. ओके, वैसे मेरा एक क्वेश्चन था कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे आपने सीखी? शी वाज द वन हु शी सेड कि यार कोई सी यू आर द चीफ एडिटर, सो यू आर डूइंग समथिंग अदर्स आर नॉट डूइंग इट. तो आप अगर बोल रहे हो एवरीबॉडी इज लिसनिंग. अब अच्छा बोलो खराब बोलो क्या फर्क पड़ता है, वो तो कर ही नहीं रहे. So you are doing something different. So be that different. Enjoy that difference. तो वो चीज़ें अब now this is a journey. अब 3 साल के बाद थोड़े ना जबरदस्ती नहीं यार शादी करनी है तो फिर तो हर जर्नी में मेरे गोवा से वापस आओगे फिर दूसरी शादी करोगे. फिर और दिल्ली गए फिर तीसरी शादी, तो फिर तो खत्म ही नहीं होते. You enjoy the time together and you learn, you understand the other person and you respect. I'm extremely lucky to for that particular phase of my life, but that was important. But अब शादी के बाद थोड़े ना देखें, we never talk to one another. जैसे भी आपने पहले बोला था कि आई एम बिलो एवरेज लुक, आपकी लुक्स बिलो एवरेज थी. अभी भी है बिलो एवरेज हमेशा. I have never been like someone who is handsome. You look and all. sexy. I'm smart. Smart, sexy and you have a good body. आप जिम जाते हो? जिम जाता था. जाते थे. When I was in NIT, I used to go to the gym. और उस टाइम पे 15.5 इंचेस के डोले रखे. Okay. But then I used to also go for, I used to have gainers, artificial protein and all. Okay. I destroyed, in the process I destroyed my liver by 27%. Okay. तो इतना खराब हुआ था कि डॉक्टर ने कहा कि you should never do this again. बहुत कम चांसेस है कि you'll recover. So after that I have never I have never used these proteins or gainers. ये कुछ भी बोल के वो बेचें, that's never natural. It will always destroy you. तो ये बिल्कुल बॉडी के लिए अच्छा नहीं है प्रोटीन. बिल्कुल नहीं. नेचुरल चीज़ें आप खाना ही खाना है तो खाना ही खाओ ना. If someone who earns 1 CR or 10 lakh rupees from his body can spend 1 lakh rupees on his body, फिर वो गेनर लेगा तो फिर वो उसको काटने के लिए भी चीज़ें लेगा, ठीक है. बट the ones who are actually promoting it, they won't say about कि वो बाकी क्या चीज़ें ले रहे हैं to ensure that कि the side effects are nullified. अब जो बंदा खरीद रहा है 5,000 दे के खरीद रहा है और वो टोटल खर्चा कर रहा है 7,000 रुपये बॉडी पे, so he will face the consequences. अगर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है आज के टाइम में, तो क्या पाथ रहता है एंटरप्रेन्योरशिप का? Is to take the first step. आपको कहीं ना कहीं आप सिंस यू आर इन कॉलेज कैंपस, आप लेमन जूस बेचो. आपको लगे कि लेमन जूस से क्या होगा. The most important thing that you can learn out of this particular endeavor is how to get customers. Someone who knows how to create customers will always find customers for his products. Okay. आपको प्रोडक्ट नहीं बनानी है, आपको you have to create customers. For that you have to know how to crack that nut, and that can be learned out of any endeavor. आप अंडा बेचो,
आपको खराब लगेगा, फिर वो फिर गाली देगा. दैट इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न कि नहीं करनी है कुछ चीज़ें. यू डोंट हैव टू रिएक्ट. कौन सा आप NIT से ग्रेजुएशन करने के बाद जाके अंडा बेचोगे? और बेचनी आ तो फिर वो स्केल पे बेचो जिसमें तुम फिर करोड़ों में कमाओगे. तो वो खराब कुछ नहीं है. बट देन आप कभी नहीं स्टेप लिए एंड देन यू आर वेटिंग फॉर दैट डे वेर यू लॉन्च समथिंग विच विल टेक एलन मस्क बाय अ सरप्राइज. तो वो नहीं होगा. वो कभी नहीं होगा. वो हैंडफुल ऑफ प्रोडक्ट्स कैन एक्चुअली ब्रिंग अ डिसरप्शन. एवरी अदर प्रोडक्ट एक्चुअली फाइंड्स अ वे टू डेस्टिनी. डिसरप्ट नहीं करता है. आप छोटे छोटे स्टेप्स लो. आप अंडा बेचो, आप सैलड. The day you start selling salad, one day you might also compete against Subway. आपको पता है कि किस तरीके से बेचनी है, कौन सा बंदा क्या चॉइस है, मतलब what is the choice of that particular person, how you can cater to the needs of somebody else, how you can bring customization, how to deal with the customer who is not happy with you. कितना कुछ सीख जाओगे. मैनेजमेंट डिग्री 2 साल की होती है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में आप 6 महीने में यू लर्न मोर देन दैट without paying, and rather you would get money out of it. प्रैक्टिकल है सारा चीज़. सो जैसे अभी जो यूथ कर रहा है, इज इट राइट थिंग? क्या क्या चेंजेस लेके आने चाहिए हमें? Youth is extremely blinded by what they have to do in the next 2-3 years. They're not concerned about the society they're living in. वो सबसे बड़ी फेलियर है. Because at the end of the day, you are a part of the society. So you got to devote time to ensure that the society and the social values, they are given highest importance. अब कोई issue होता है, how many of you actually stand against or stand for? Whatever, I'm not saying you have to stand against anyone. At times you have to stand for someone also. लेकिन जो institutions हैं, they work in silos. They're like, the students are in the, they're in the campus. They're moving around. वो इसके साथ जा रहा है, वो उसके साथ घूम रहा है. They absolutely have no clue what's happening in, just outside the campus. True. कितने लोग जाके DC से मिलते हो, DM से, DC से. कितने लोग जाके मिलते हो कि नहीं यार, आई कैन हेल्प द सोसाइटी. इफ द DC इज डूइंग समथिंग, आई कैन एक्चुअली कम अप विद सम ऑफ आई कैन हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट्स. कितने लोग करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली गो टू द सिविल हॉस्पिटल्स? हम लंगर लगाते हैं और एंड पीपल फ्रॉम कार्स दे डिसम्बर्क एंड दे हैव लंगर. लेकिन एक्चुअली किसको रिक्वायरमेंट है? सिविल हॉस्पिटल्स में आप देखो, देयर huge needs. Almost everybody is a needy person, and nobody is there to help them out. You got to help people, those who need help, not those who have extra and they're just trying to show off. And the youth can only change it. Only the youth can change it. क्योंकि आपके पास वो एनर्जी है, आपके पास वो zeal है, and the most important thing is that focus and the unity. आपके पास 50-100 बच्चे, आप साथ में जाके कुछ कर सकते हो. I cannot do that. I mean, if I call my batchmates, they would hardly pick the call also. They कह रहे हैं इतने साल हो गए अभी. So the most important thing is you do something for the society. And the youth, again, it's not just one particular person. Then he will be targeted. It's a bunch of youth, it's a group of youth that can change, and it should change. Otherwise, if you cannot be the change, you can just wait and watch. बट सर, ये चेंज लेके कैसे आ सकते हैं, कि क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? Forget about everything. आप लोग पढ़ाई में अच्छे हो, since you are in NITs. How about spending 3 hours or 4 hours every week to teach the next generation? ये तो कर सकते हो. सिंपल सा फंडा है. Unless and until you devote 3 hours or 4 hours a week, no changes is going. There are no changes, absolute no changes coming up. So you have to devote, be it in education, be it in medical, be it in collecting blankets or clothes and distributing it. But then do it not because you are a part of a group,
but do it because you feel like this is your society and you can change it. अगर आप अपने पेरेंट्स को चेंज नहीं करते हो ना, यू नेवर से दैट कि नहीं यार नीता अंबानी होते तो फिर अच्छा होता मम्मा, तो ये तो नहीं बोलते हो ना. तो यू आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स, अनलेस एंड अनटिल, लेकिन बहुत कम होंगे जो कि दे आर नॉट वेरी प्राउड ऑफ. अदरवाइज यू आर इमोशनली कनेक्टेड with your parents. You love them, you respect them, and one of your greatest happiness would be to actually see them happy. अगर वो चेंज नहीं कर पाते then why the country? Why you leave the country and go to to a different country and you are proud कि नहीं मैं छोड़ के आ गया? Why you do it? It is your country. You are the only one who should change it. अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर then you take the blame, because no matter what you do tomorrow, you'll always be an Indian. Your kids might change the nationality, but you will always be an Indian and you will go to the grave with that identity. तो आप ही चेंज कर सकते हो. And it has to be a movement. And if you start today, like 2 or 3 people joining it, then you teach, you join, you go to the DC. कि I'll teach for 3 hours. I'll teach in the government schools without any fee. The pleasure that you come out by offering your services for the society is second to none. And second thing is he will get you involved in more projects. कि अरे आप ये करो, and you can teach IAS aspirants, you can teach engineering aspirants, you can teach students, you can go for blood banks, blood donations. That's n number of things that you can do. N number of things. And वहाँ से connections भी build होते हैं जो कि हमें सब, personal and life में again बहुत it helps you at the end of the day. Someone who has if you look at the politicians, one thing they're good at is connections. That's why they are they are politicians. But then why can't the toppers do it? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं यार ये मार्क के अलावा और कुछ भी नहीं है. एक defined path है. Defined, but then that goes to a dead end. आपको कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा. You never know. आपको लगता है कि even like I'm a gold medalist, कितना मार्क्स रखा किसी को पता ही नहीं है. You didn't ask me also. आपको लगा कि गोल्ड मेडलिस्ट है, कितना परसेंटेज है, क्या फर्क पड़ता है? Even if it's 70 or it's 90, क्या फर्क पड़ता है? इट्स अ गोल्ड मेडल. और वो भी एक टैग, जो सेकंड आया वो सिल्वर मेडल बोल देगा, थर्ड वाले को तो कोई पूछता भी नहीं है. Develop connections and be with if you go to the local MLA, he would have tens or thousands or hundreds of projects that he can give it to you. क्योंकि उसके पास काम तो बहुत है, लोग नहीं है. And you develop and you build that rapport. और वो वहाँ से आप कहाँ पर जाओगे आपको पता ही नहीं है. It's not like when you go ahead and कि तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, कैमरा लेके चले गए, तो then फिर उसके बाद भी तुम कहाँ जाओगे वो भी पता नहीं होगा. That's a different story. But at the same time you can always help him out. क्यों करनी है? क्योंकि that's your society यार, your part ना. You look, I was there in US, I was there in UK. The kind of pride that they hold for their own nationality is like amazing. आप UK में जाओ, बच्चा मतलब you ask even a school kid about the history of UK, they won't be able to actually give you in details. But one thing he is very sure of, he is like he's proud of the king or the queen. Being in a very small island, they ruled over 70% of the world. He is proud of that fact. तो कहीं ना कहीं आपको तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा. by the time you are like you join your engineering colleges at the age of 17 or 18. फिर उसके बाद पढ़ाई, फिर गर्लफ्रेंड, फिर शादी, फिर घर. तो तुम सोसाइटी के पार्ट कब बने? Why the society will look after you? Why the society will provide you security? आपने क्या उखाड़ दिया? You have been taking away from the society. कि मैं NIT में पढ़ा, so you get subsidy. कितने कम पैसे में आप लोग रहते हो, so you get subsidy everywhere. And then all of a sudden कि भाई हम तो भाई US जा रहे हैं. तो who is going to give that? Who is going to fill that buffer? जो buffer आप लेके चले गए. Somebody has to fill it ना. और वो fill नहीं होता तो फिर then you will find criminals coming up. क्राइम जहां पर होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि somebody took undue advantage and left. He is not accountable.
Now there is a dearth in resources, so there is a fight, so somebody would resort to violence. So you have to do that. Great. A part of it is it's a responsibility, and I'm planning to come up with something like this also. Like I want to get all the youth, I mean, not all, rather some youth at least, some 50,000, 60,000 youth connected, just to spare 3 hours a week in doing whatever they want. It's not like I am the one who would say कि भाई आपको ये करनी है. No, आपको जो भी करना है, but then it has to be a voluntary service. And you are doing it at least for 3 hours and regularly. ऐसा नहीं कि एक 1 week you are there, second week नहीं यार वो सर वो मुझे ना वो पल्लवी बुला रही है, वो प्रियंका बुला रही है and all that. No. So it has to be like regular efforts put together. Okay. तो मतलब फिर इन 3 hours में होगा क्या? 3 hours आप एक स्कूल में जाकर 3 घंटे पढ़ा लो. लाइक हमें कुछ भी हेल्प करनी है सोसाइटी को चेंज करने के लिए इन 3 घंटे. फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड नॉट बी इट शुड बी अ हब एंड स्पोक मॉडल. मतलब इट शुड नॉट बी इंडिविजुअल्स हेल्पिंग द सोसाइटी. सो यू कम टू अ पर्टिकुलर प्लेस, देयर इज अ कॉन्ग्रीगेशन प्लेस. सो सपोज आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में आपने डिसाइड किया कि 30 पीपल ज्वाइनिंग टुगेदर. तो 30 पीपल यू ज्वाइन, you report to a particular, at a particular time at a particular location. And then you decide कि सर आज ये चीज़ें, मतलब सर मतलब the head of that particular group कि आज ये करनी है. Then you 30 people, you go to that particular school or you go to a civil hospital. You decide, you congregate, you have dinners together. क्योंकि वो कहना है कम्युनिटी बिल्डिंग हो रही है. ऐसा नहीं है कि आप मतलब अकेले जाके स्कूल में पढ़ा रहे हो. तो क्या हम इसको NGO बोल सकते हैं? इट्स अ पार्ट, बोलने के लिए कंपनी भी बोल दो, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ, आई थिंक इन NIT ऑल्सो आई केम अक्रॉस वन पर्टिकुलर ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म. आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द नेम, वेयर Prayas, where there are around 40-50 people, those who bring the students, not students, rather the kids of those areas where there are no Workers, schools, laborers. absolutely no labor classes, and then you teach them, and some of them have have cleared the NIT examinations also, like JEE examinations. So that's the kind of impact, and it's been there for last 10 years. So Prayas, whether it is an NGO or a company, nobody knows. It's an emotion. So you can call it as call it as Bharat movement, call it as anything, but emotionally connected with that particular movement. But 30-40 people joining hands together, the kind of confidence that you will come up with is second to none. आपको ना अलग लेवल, आपको लगेगा कि you can do anything. 30 people are there behind me. आप कुछ भी कर सकते हो. यू गो टू द DC, वो आपको इंडिविजुअली जाओगे, ही विल नॉट टेक यू सीरियसली. नो, यू गो 30 पीपल कि सर हम NIT से हम कुछ करना चाहेंगे, वट एवर यू गिव अस वी विल डू इट. ही विल बी द वन हु वुड बी लाइक कि अरे यार सोसाइटी इज चेंजिंग यार. You go to government schools, you straight away go to the DC. He will have so many projects where he needs help. He will give it to you. कितना कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट से लेके कुछ बहुत कुछ कर सकते हो. एंड द यूथ हैव टू स्टेप आउट. आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि सर मैं इंजीनियरिंग करूँगा यार. इंजीनियरिंग भी आप कौन सा इंजीनियरिंग कर रहे हो यार? डेस्कटॉप इंजीनियरिंग अगर आप सोसाइटी में ही जा नहीं रहे हो तो कौन सा इंजीनियरिंग है? यू डोंट नो द नीड्स ऑफ द पीपल. आप जो बना रहे हो वो तो चाहिए ही नहीं है. एंड द गैप यू आर क्रिएटिंग विल ओनली क्रिएट क्रिमिनल्स. क्योंकि आप घर में रह लोगे ना, यू विल हैव वेरी हाई वॉल्स एंड यू आर लाइक हैविंग 10 cars. द सोसाइटी विच इज बियॉन्ड द वॉल्स, दे आर लाइक दे आर फाइटिंग फॉर फूड. वन डे यू विल स्टेप इन टू देयर वर्ल्ड. वन डे यू विल कम आउट ऑफ द वॉल्स. दैट डे वुड बी द लास्ट डे. सर आपको कोई फेवरेट कोट? मेरी फेवरेट जो कोट है वो मैंने लिखे हैं. ओके, ग्रेट. लाइफ इज एन एक्सपेरिमेंट विथ एक्सपीरियंसेस. आप अभी जैसे मैंने बोला कि द एक्सपीरियंसेस यू गेन ड्यूरिंग योर बैचलर्स विल ऑलवेज यूज इट समवेयर इन योर लाइफ. तो दीज एक्सपेरिमेंट्स आर एक्सट्रीमली क्रूशियल. उस टाइम पे लगता है कि भाई क्यों कर रहे हैं, बट समवेयर
down the lane you will use it. And I used this particular quote in my first novel, Never Apart, and then I switched my genre and I moved to sci-fi writing. Now I'm more into sci-fi writing, teaching my daughter regarding science, history, and all. So I have stopped creating these quotes, but yes, these are all out of my own life. ग्रेट सर, ग्रेट. थैंक यू सो मच सर. आपके साथ काफ़ी अच्छा लगा एक इतनी अच्छी प्यारी कन्वर्सेशन करके, एंड आई लर्न अ लॉट. और जैसे आप हर चीज़ में कोट को एक एज अ रेफरेंस लेके आते हो, दैट्स रियली अमेजिंग. और आपका बात करने का वे एंड कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी लगी. Thank you. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो Thank मच. you. Thank you.